सरस्वती देवी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तरचिता वंशाकल्पतरुश्च कृपा समुद्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। The Upanishads, जिसका सार भगवत गीता is the sar of the Upanishad. And of course, Upanishad themselves are very substance filled. They are the foundational principle of any aspect for that matter. Whether it is Jiva, whether it is Prakriti, whether it is Purusha, whether it is about the rituals, everything is explained in a very substantial foundational principle, जिसके बारे में आपको सोचना पड़ता है। जैसे वेद मंत्रस, the Ved mantras were heard by the rishis. ऋषियों के लिए, for the rishis it was pratyaksha, but for the sadhakas it is paroksha. Now you hear, but they give that promise, not in the next life. They give that promise, that knowledge what has been spoken in the Vedas, you hear them, and eventually you will be able to see that it is a provable. No? In the Abrahamic religion, it doesn't matter whether you prove or not, you have to accept it. न्याय न होने के कारण वहां आपको विश्वास रखना होता है, परंतु ऋषिगण आपको विश्वास से बढ़कर ये आश्वासन देते, दे गिव यू दैट प्रॉमिस. व्हाट इज दैट प्रॉमिस? यू विल एक्सपीरियंस इट फॉर श्योर. It is not a post-dated chuck. It is an experiential knowledge, right? So therefore, in the Chandogya Upanishad, there is a very nice drishtant or prasanga. You must have heard the name Uddalaka and Shvetaketu. Shvetaketu is the student, son, and Uddalaka is the father. Shvetaketu and Uddalaka was asked by the son Shvetaketu about the pramana of Atma और ईश्वर, दोनों का उन्होंने प्रमाण पूछा. So the father, basically what he did was, with an illustration, with a proper experimentation, he asked the son to get some salt, asked him to get some water in a container. And the son brought some salt in the container with the water, and he placed salt in the container. And he asked, do you see the salt? He said, yes. Do you see the water? Yes. बोले कल देखते हैं हम लोग, we will see that tomorrow. Next morning when they woke up, the salt had disappeared. The boy was shocked. What happened? Where is the salt? And the father took one drop of water and placed it on his tongue, the son's tongue. And the son experienced salt. उन्होंने कहा आप सॉल्ट को देख नहीं रहे हो, यू आर नॉट सीइंग द सॉल्ट बट द सॉल्ट यू आर एक्सपीरियंसिंग. वो क्या बन गया? भी ऑल परवेडिंग बन गया है. इनविजिबल है परंतु नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, राइट? इट इज एग्जिस्टेंट इन अ डिफरेंट फॉर्म.
तो ऐसे उद्दालक ने श्वेत केतु को ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ था अच्छा से, वेरी सिस्टमेटिकली. सो दिस श्वेत केतु कम्स टू वन किंग. वो प्रवाहन जयवली करके राजा था, पंचाल देश का राजा था. उसके पास आया, ही केम टू हिम एंड ही आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द, डू यू नो ब्रह्म विद्या? द बॉय सेड, या आई नो ब्रह्म विद्या. सो देन ठीक है, मैं आपको 5 प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर दे. द किंग आस्क्ड हिम 5 क्वेश्चंस. द क्वेश्चन वाज, वेयर डू द पीपल गो आफ्टर देयर डेथ? सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू दे कम बैक? Those who are dead, how do they come back? Third question, what is the distinction between Devayana and Pitrayana? In the 8th chapter of the Bhagavad Gita, we study that those who die during the Dakshinayana, those who die during the Uttarayana, right? He explained that. Then the fourth question he asked, why does the Pitriloka not fill up? And the fifth question is, जो जल है, जल कैसे पुरुष बन जाता है? How does the watery substance turn into Purusha? तो Shvetaketu was bewildered. He was not able to answer this question. Because he was not able to answer this question, he felt little hurt. Then he came to his father, Uddalaka. और उद्दालकों का ये क्षत्र बंधु ने थोड़ा सा आवाज कड़क था. When you call somebody Kshatra Bandhu, it sounds very sweet, but it is a sarcasm. It's a kind of a bad word. तुम केवल क्षत्रिय संबंधों के कारण हो, तुम खुद क्षत्रिय नहीं हो. बेसिकली नेपोटिज्म इस शब्द का संस्कृत में क्षत्र बंधु, राइट. ही सेड लाइक दैट. एक क्षत्र बंधु ने मुझे प्रश्न डाला. ही रेज दिस क्वेश्चन टू मी, but I was not able to answer. My dear father, why you did not teach me this Brahma Vidya? Now father was a mature Brahmana. तो उसने बोला, मैं नहीं जानता इसको. I do not know about this. Let us go to the king only and learn from him. Now what do we learn recently? This Aniruddha Acharya, आपने सुना होगा. He is doing kind of a good work. सनातन का प्रचार कर रहा है. लेकिन there is something which is not very all accommodating. Like one बिहार का लड़का, उसे प्रश्न पूछा. He said, महाराज जी, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ठाकुर हूं, लेकिन मैं गांव गांव में जाकर कथा करता हूं, भागवत कथा करता हूं. तो क्या मुझे भागवत कथा करना चाहिए कि नहीं? तो उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर शास्त्रोक्त, उत्तर सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर ये होना चाहिए, ऑफ कोर्स, whether you are scholar or not, don't take the position of sainthood, but कृष्ण कथा, भागवत कथा को जैसे आपने जाना हुआ है उसको प्रामाणिकता से सबको बोलो. इसमें कोई जाति वर्ण भेद नहीं होता. हाँ, when it comes to वैदिक रिचुअल्स, उसमें तो साधारण ब्राह्मण भी नहीं कर सकते. उसके लिए जो वेदवित्त ब्राह्मण ही उसको करना होता है. लेकिन पौराणिक कथा को कोई भी कर सकता है. सूत गोस्वामी वॉज नॉट अ ब्राह्मण. शौनकादि ऋषि, 60,000 ऋषिगण उनसे सुन रहे थे.
देन विश्वामित्र मुनि और चांडाल के बीच में संवाद चांडाल से सुन रहे, धर्मव्याध और कौशिक ऋषि वो सुन रहे। सो नॉलेज इन द सनातन धर्म इज नॉट हायरार्कियल। जिसके अंदर ब्राह्मणत्व है वहां से आप ज्ञान ले सकते हो, इवन दो ही मे नॉट बी अ ब्राह्मण, राइट। एंड समाज में जब आप पब्लिकली ऐसा कह रहे हो, ऑलरेडी देर इज एन अटैक ऑन द ब्राह्मण कम्युनिटी। By speaking this, you are not going any good to them, causing more pain to them, right? तो यहाँ ये ब्राह्मण उद्धालक, being extremely hungry for knowledge, hungry for learning, it did not matter where it came from, right? चाणक्य पंडित कहते हैं, अगर अच्छी कन्या जहां से भी मिलती है, ज्ञान कहां से भी मिलता है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। So Uddalaka and Shvetaketu come to this king and they asked him, my dear king, can you teach me Brahma Vidya? तो उस श्वेत के उस उपनिषद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट उपनिषद, the king is telling the Brahmanas, he said, this is the first time some Brahmana has come to me, otherwise this knowledge up until it was given to a Kshatriya. परंतु अब ब्राह्मण में आपके कैसे सिखा सकता हूं? बट उद्दालका insisted. Then the king said, विद्या सीखने के लिए निवासी होना चाहिए, विद्या सीखने के लिए परिचित होना चाहिए, विद्या सीखने के लिए परीक्षा होनी चाहिए। There has to be relationship between the student and the teacher. They should know each other. थोड़ी आत्मीयता होनी चाहिए, तो उससे संवाद हो जाता है। बिना आत्मीयता का संवाद नहीं होता, वह भाषण हो जाता है, राइट। तो फिर भी उद्दालक ने उनसे प्रार्थना की समझाने के लिए। देन ही सेड, ओके, यू स्टे हियर, आई विल टीच यू। एंड व्हाट डिड ही टीच? उन्होंने क्या सिखाया? ही टॉट हिम द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि। अदर डे I was teaching little concept of Srishti and creation. There is a big battle is happening in India, especially by the political parties like DMK, Congress, and the Andhra Kavi Congress, that they're hardcore anti against Hindi, completely okay with English. I think there is a conference organized by the print media, प्रकृति और संस्कृति भाषा का अंतर क्या है। Imagine some of these people, they say Sanskrit has more connection to the Western language than the Prakriti language. मतलब जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, उसको कौन ठीक कर सकता है? इंग्लिश सीखना चाहिए, उसमें कोई सवाल नहीं है, परंतु इंग्लिश के प्रति जो प्रेम दिखाते हैं ना भारतीय लोग, उसकी वाहवाह करते हैं ना, it is very, very sickening. If you study, I was reading this book by Amitav Ghosh. There, Amitav Ghosh explains when the Indian boys would join the British army, they were always controlled by the white people only.
you would hardly find any officers who are from the Indian background. तो जब समय राइप हो गया, कईयों को ब्रिटिश लोगों ने ऑफिसर बनाया, those were Indians, and the fellow Indians felt insulted to be led by Indian people. They revolted, saying that we want white officer only. और ये लड़का जो ऑफिसर बना था, he was such a champion of the British education system, British army. He would argue with his aunt, who was enlightened with what was happening in the Western world, racism, domination of the white people. Right. So she talks to him. We should understand this. But this boy argues with his aunt, goes to army, but he sees that firsthand that how many of Indians would not want to be led by another Indian, happy to be led by a white person, enslaved. तभी उसको समझा, बाप रे ये कितना गहरा है. Right? It is not that learning English. It is worshipping English and hating your own fellow language, हिंदी. और कोई उनको इम्पोज नहीं किया जा रहा है. राइट. तो जब ज्ञान के साथ में घृणा हो जाती है, उस भाषा के साथ में घृणा हो जाती है, और and I'll give the example why we need to learn either your mother tongue or Sanskrit, or for that matter Hindi, is because learning of the foundational concept of the Shastras become very easy. उदाहरण दे रहा हूं मैं. In English we call as creation. In Sanskrit we call it as Prakriti. We call it as the Prakriti. So what is the difference between creation and a Prakriti? One of the flaw in our Gita class, the journey of self-discovery, we present the concept of creation just like the watch and watchmaker. Everyone who heard Bhagavad Gita, the 7-day course, know this example was used. I don't know whether they use it or not. So that is one of the biggest flaw, because when you speak in English, you consider it was non-existent and somebody created it. But when you use the word Prakriti, Prakriti denotes Prakrishta Rupena Kriti. It is self-manifested. इसको कोई बनाता नहीं है. ईश्वर, प्रकृति, काल और जीव ये शाश्वत सनातन है. They cannot be created, they manifest. And manifestation का जो प्रोसेस है ना, it is not like a factory. वो प्रकट हो जाता है. वर्ड प्रकट देखो, प्रकृष्ट रूप में प्रकट होना, मैनिफेस्टेशन, आ जाना, प्रकट हो जाना. राइट. सो व्हेन जीव और प्रकृति इटर्नल है, तो वहां फिर क्या हो जाता है, आपको अस्तित्व में रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है. ईश्वर आपके लिए एक ऑर्डर सप्लायर नहीं बनता. ईश्वर के साथ में आपका संबंध प्रेम का अनकंडीशनल बन जाता है. Because you don't need anything from him. You are full of knowledge, full of bliss, full of eternality. For your existence, you don't need anything from him. But for your loving relationship, you need him. तो क्या हुआ, वहां आप भौतिक वस्तु नहीं मांगोगे, नॉट बिकॉज यू आर अ प्योर डिवोटी, बिकॉज यू हैव अ कॉमन सेंस.
तो बिकॉज यू आर इटर्नल, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ योर ओरिजिन इज सिंफुल, योर ओरिजिन इज ब्लिसफुल। तो इसलिए इफ यू एक्चुअली गौर से देखोगे, जो केवल इंग्लिश भाषा को सीखता है और बाकी अपनी भाषा को नहीं सीखता, देयर कॉन्सेप्ट is consciously unconsciously becomes extremely abrahamic in psychology. You give contract to guru, you give contract to god, you call it as the causeless mercy that he will take everything of yours, he will care for you everything, right? एक एक क्रिएशन, ऐसे कितने आत्मीयता इस शब्द का आप संस्कृत में अनुवाद नहीं कर सकते हो, कन्नड़ा में कर सकते हो, वही शब्द का उपयोग करोगे। Right? So therefore, if you learn one more language which is connected to Bharatiya Bhasha, it is only helps you to become more evolved human being. And when you approach English through your mother tongue, अपनी भाषा से अगर आप इंग्लिश का अप्रोच करोगे, उसका उपयोग कर पाओगे ठीक से, लेकिन उसकी उपासना नहीं करोगे। And that is the sad part, right? That is the sad part where people don't allow others to grow, the political leaders, even this Aniruddha Acharya saying, Are Brahman kya? Are Baba, you see the surrounding, kya? You don't understand the social reality. Do you not understand the substantial principle of the Shastra, Puran Katha, Mahabharat Katha? इसको कोई भी कर सकता है, प्रामाणिकता से कोई भी इसको कर सकता है, आपको जाति का कोई लेना देना नहीं है, राइट? उपनयन संस्कार सबके लिए होता है, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं होता। तो इसलिए उद्दालक और श्वेतकेतु तो इसको पहले से जानते थे, वो उनका बेसिकली सराउंडिंग था, कमिंग टू हिम एंड आस्किंग दैट क्वेश्चन, एंड अवर राजा बैठ के उनको ज्ञान देने लगता है। He starts giving knowledge to Uddalaka and Shvetaketu. And how does he begin by giving the knowledge? By explaining the process of yajna. Because बिना यज्ञ के क्रिएशन नहीं होता, सृष्टि प्रकट नहीं होती है, यज्ञ करनी पड़ती है, त्याग दिखाना पड़ता है, समर्पण की भावना आनी पड़ती है, देन व्हेन द सृष्टि प्रकट होने लगता है। तो द्युलोक, ये द्युलोक है, वो अग्नि है, और आदित्य उसका ईंधन है, समित है, समित, और उसके रश्मि, राइट, वो उसका धुआं है, और दिन उसकी ज्वाला है, चंद्र उसका सिंडर, उसको जो होता है ना कोयला जब तप जाता है, और नक्षत्र उसके वो जो स्पार्क है फायर से निकलता है। और इस अग्नि में देवतागण क्या करते हैं? श्रद्धा को आहुति देते हैं, और ऐसे करने से क्या हो जाता है? राइट, व्हाट इज देयर वी सॉ हियर, अग्नि है, द्युलोक नाम का अग्नि है जो प्रकाशित है, द्यू, और उसके लिए समित कौन है? आदित्य है, रश्मि उसके यानी कि किरण, सूर्य किरण उसके धुआं है, दिन उसकी ज्वाला है, चंद्र उसका सिंडर है, नक्षत्र उनके स्पार्क है। और जब इस अग्नि में देवता गण श्रद्धा को आहुति देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? सोम का जन्म हो जाता है।
रिमेंबर दैट क्वेश्चन आएगा इस उत्तर का कि पानी पुरुष में कब परिवर्तित हो जाता है. साउंड्स वेरी, नॉट वेरी कोहेरेंट क्वेश्चन, लेकिन पढ़ते हैं. विल रीड दैट. देन द सेकंड इज अग्नि. तो आपका स्पीकर ऑन है. सो अग्नि ये दूसरा पर्जन्य दूसरा अग्नि है. ओके. अभी क्या करते हैं देवतागण, इस पर्जन्य में सोम को अर्पण करते हैं. और इस पर्जन्य नाम की अग्नि के लिए वायु समित्व है. समित्व इज दैट लकड़ी. और मेघ, क्लाउड्स आर दी स्मोक. और जो जो लाइटनिंग होता है ना वो ज्वाला है. एंड द थंडर इज द सिंडर. Sorry, the lightning, and when the lightning comes down, that is that cinder, and the loud sound thunder is that spark. और उसे क्या जन्म आता है? बारिश आने लगता है. ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ते हो इसको, ये उपनिषद से आया हुआ है. I think whether it is in the 8th or 13th chapter, I don't remember. बट इसको देखो, अभी क्या, पहले सोम आ गया, सोम को अर्पण किया, मेघ, फिर थंडर, क्लाउड्स, एंड देन द साउंड. तो उससे क्या हुआ? बारिश आ गए, बारिश. तो बारिश आया, और इस बारिश क्या हुआ? वो बारिश का उपयोग हो गया. किसमें उपयोग है? तीसरे यज्ञ में, या तीसरे अग्नि में. पृथ्वी तीसरी अग्नि है. संवत्सरा, राइट, दैट सीजन उसका समित्त है. और आकाश ही उसका धुआं है. और रात्रि उसकी ज्वाला है. और दिशाएं उसके सिंडर है. और जो उपदिशाएं है वो सारे स्पार्क, द स्पार्क कम्स फ्रॉम द फायर. और इसमें, इस पृथ्वी में क्या करते देवतागण? बारिश को अर्पण करते हैं. और उस बारिश से क्या निकला? अन्न निकला. नाउ डू वी नीड एनी मोर प्रूफ अदर देन लॉजिक हियर? बहुत सारे सुंदर पोएटिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कितना सही है? राइट, कितना सही है? तो उससे अन्न आ गया. और ये अन्न का उपयोग किधर हो गया? दैट वी विल स्टडी. पुरुष ये चौथा अग्नि है. और वाक उसका समित्त है, बोलना. और उसका प्राण धुआं है. और उसकी जिह्वा ज्वाला है. देखो, माय गॉड, उपनिषद हाउ प्रोफाउंड दे आर. कि जिह्वा सत्य बोलने का एक ज्वाला होता है, और असत्य बोलने का एक आग होती है. तो यहां इसलिए जिह्वा को सत्य का अग्नि के समान स्वीकार किया गया है. और हमारे आंखें इस सिंडर. और हमारे कान, दे आर दी फायर में जो उड़ता है ना बीच में, दैट इज इट. और इस पुरुष अग्नि में देवतागण ने क्या किया? अन्न का होम किया. राइट. और उस अन्न से क्या निकला? रेतस, वीर्य. राइट, रेतस निकला. और अंत में ये जो पांचवा अग्नि है वो स्त्री है. और इस अग्नि में देवतागण पुरुष रेतस का होम कर दिया. द प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशन
is so profoundly explained in the Upanishad. सोचो क्या सुंदरता से वर्णन किया हुआ है, राइट? उसको अर्पण किया। तो आप यानी कि वो जल जो सिमन है, पुरुष वीर्य है, वो कैसे प्रकट हो जाता है? पुरुष रूप में प्रकट हो जाता है। किसी को बच्चा होता है, किसी को बेटा हो जाता है। हाँ, सो व्हाट डज इट डू? वो वायु के कारण किसी के घर में 10 दिन के लिए रहता है। तो कहां से आता है वो? अगर अग्नि से आया हो तो अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए द होल प्रोसेस ऑफ बर्निंग द डेड बॉडी इज नथिंग बट बिकॉज यू कम फ्रॉम अग्नि। अगर जहां से आए हो वहां से आपको जाना होगा। इस प्रकार से उपनिषद जब भी हम समझने का प्रयास करते हैं, दे आर सो profound. हाउ इज इट पॉसिबल टू स्टडी दिस उपनिषद थ्रू द लेंस ऑफ द वाइट पीपल, जिन्होंने इंडोलॉजिस्ट बन के इन ग्रंथों को अपने बुद्धि से समझाने का प्रयास किया और इतने भ्रमित हो गए और सबको भ्रमित कर दिया ना। सो देयरफॉर ये जो रस है, सोम रस, ये जो आकाश है, ये जो अग्नि है, ये जो भूमि है, उधर से जो ग्रेन निकलता है, वो ग्रेन को स्वीकार करने से, इसीलिए इमेजिन हाउ मच देयर इज एन इम्पोर्टेंस फॉर मेकिंग द फूड सीक्रेट। आहार यज्ञ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण उस आहार के इतने सारे नियम थे, राइट? इतने सारे नियम थे। यस, वी विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स। इतने सारे नियम थे आहार को लेकर। अगर आप देखोगे आज के समय में आहार में दम नहीं है, और आहार में दम न होने के कारण रेतस जो प्रश्न उठाया था कि आप पुरुष कब बनता है, हियर दी आप इज सिनोनिमस टू रेतस। अगर वो रेतस में दम नहीं है, क्योंकि आपके भोजन में दम नहीं है, तो पुरुष कैसे बनेगा? वो फेमिनिस्ट ही बनेगा, राइट? द मैस्कुलिन एनर्जी, द इवॉल्व्ड प्रोटेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी इज नॉन एग्जिस्टेंट, राइट? इट इज ऑल सेंटर्ड अराउंड फीलिंग rather देन फैक्चुअल रियलिटी। आज का पूरा समाज का केंद्र बिंदु क्या है? हाउ आई फील। इट इज नॉट अबाउट द ट्रुथ, इट इज नॉट अबाउट सत्य, राइट? बिकॉज सत्य जो होता है ना, उसको हैंडल करने के लिए ना, पुरुष इज नॉट नेसेसरली अ मैन अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वर्ड मैन। अगेन जब आप इंग्लिश भाषा को पुरुष को मैन के रूप में ट्रांसलेट कर देते हो, वहां डिस्टिंक्शन आ जाता है। यहाँ पुरुष कैन ऑल्सो डिनोट वन हु हैज द पावर टू एक्सर्ट। एक स्त्री भी पुरुष हो सकती है, एक पुरुष भी पुरुष हो सकता है, राइट? और इसीलिए ये अन्न खाने के कारण, ये ज्ञान का अन्न के कारण एक प्रकार की क्षमता थी, राइट? देयर वाज अ पावर इन देम टू हैंडल बेस्ड अपॉन ट्रुथ rather देन फीलिंग्स। देखो कितना, और ये जो ये उपनिषद में बताया जा रहा है, द उपनिषद स्पीकिंग अबाउट इट, जितना गहरा है फिलोसफिकली, उतना कॉमन सेंस प्रैक्टिकल है।
Imagine so much importance was given for food eating in the home. जो खेती से निकाल कर लाना और उसकी सब्जी बनाना, आपने देखा कि जल में क्या ताकत होती है. Many years ago, I remember in Bagalkot, somebody gave me peanuts which was harvested only through rainwater. केवल बारिश के पानी से उसका हार्वेस्टिंग किया था, टैंकी का पानी नहीं था, तालाब का पानी नहीं था. Certainly not the water what we see on the railway track of Mumbai. थोड़ा सा लोग सब्जियां लगाते, right? Imagine, and then it is basically uh, what is that? Basically artificial food. तो वहां दम ही नहीं होगा, वहां सब्सटेंस नहीं होगा, वहां इवॉल्व होने की क्षमता नहीं रहेगी. राइट? अंडरस्टैंडिंग, दृष्टिकोण सही नहीं रहेगा. राइट? अभी दृष्टिकोण सही नहीं रहेगा, ज्ञान ठीक नहीं रहेगा, खाना ठीक नहीं रहेगा, देन यू आर इजीली परचेजेबल. And once you are easily purchasable, you allow them to purchase you, then you stop thinking. आप सोचना बंद कर देते हो, क्योंकि सोचने के लिए एक क्षमता लगती है, सत्य के लिए क्षमता लगती है. एंड देन व्हाट हैपेंस व्हेन सत्य को झेलने के, सत्य को समझने की क्षमता न होने के कारण वी टेक शेल्टर ऑफ अनरीजनेबल फेथ. श्रद्धा का आश्रय नहीं लेते, अनरीजनेबल फेथ का आश्रय लेते. That when you are always awarded a post-dated check. इसलिए one philosopher said, what is the difference between Christianity and communism? Communism is promising a lake of honey in the future, not future life, but in the future. So this philosopher said, communism is Christianity in this world. And Christianity is a communism promising the spiritual world. दोनों empty promises देते हैं. बट सनातन धर्म क्या कहता है? मैं आपको अनुभव देता हूं. Now, before even talking about going to the spiritual realm, you will get that experience. And when you get that experience of every small aspect, right, then your conviction is unshakable, because it is not rooted on somebody else. It is rooted on our own self. Therefore, self-discovery for Sanatan Dharma is very slow, steady process. But the Dharma, उनका जो participation in the society है, it's always working faster, judiciously, right? Wages war, wages peace, wages friendship, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा उसके साथ है और धर्म को लेकर वो ये सब करने की क्षमता को रखता है. इसलिए when you study Gita, when you study any of our dharmic literature, they are brutally real while being very poetic. Thank you. Hare Krishna. Any questions or comments? Anyone has any question, they can raise their hand. I think Deepak had raised his hand. Yes, sorry, that was by mistake. Yeah, thank you. Going to one thing, generally, if you see Yeah. the Vedas or the Vedas, the way they narrate, there is an abstraction in it. Yes. It doesn't very directly say things. Like everything. Like even if you see the Taittiriya Upanishad, the Purvaruni, Uttararuni, and all that. If you see the Upanishads in general, there is an abstract, poetic
the meaning isn't very clear immediately. One has to think very deeply. Unlike Puranic or even the way we present in our devotional literature, something very very direct. Uh, Hmm. so how do you see that approach? Any reason you think why the Veda Upanishad goes for a little indirect, abstract, metaphysical kind of presentation? बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर आपका जो एनर्जी जो आपका सोम के साथ और अग्नि के साथ संबंध, जैसे अभी उपनयन संस्कार, राइट, अभी उपनयन अगर देखो, अभी कैसे एक 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 आईएएस ऑफिसर का टीचर है, ब्राह्मणी आदमी है, बट बिकॉज इज इन द यूपीएससी, मतलब इतना ब्लेटेंट झूठ बोलता है। मतलब 3000 सालों से ब्राह्मणों ने विद्या को नियंत्रण में रखा, मतलब कौन सी विद्या की बात कर रहे हो जो नियंत्रण में रखा, राइट। सारा जो भी प्रोफेशनल काम, वेदर कारपेंट्री हो गया या फिर सोना का काम हो गया या कॉबलर का काम हो गया, यू नेवर हैड अ कंपटीशन, उसमें ब्राह्मण लोग कभी आए ही नहीं, राइट। ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज नो कंपटीशन अदर देन द शूद्र कम्युनिटी, इफ यू वांट टू कॉल देम एज शूद्रस। अभी आ रहा है, बहुत सारे लोग घुस रहे हैं उसमें, राइट। तो द पॉइंट इज कि ये जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या है ना, इफ यू स्टडी वेदर इट इज आवर ओन फिलोसफी, और फिर सुदर्शन क्रिया हो गया, फिर ये हो गया, उन्होंने क्या किया ना, लोगों के बुद्धि के अनुसार, फॉर द राइट रीजन ओनली, गिव देम स्ट्रेट सिंपल, इस पर लगे रहो, एंड देन इससे ज्यादा आप कुछ को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बट द पॉइंट इज, there will be class of people, they will not be happy with the direct concept, they are also looking abstract in that, because abstract is very profound। एब्स्ट्रैक्ट जो है, जैसे उद्धालक को, श्वेत केतु को उद्धालक ने पानी और सॉल्ट का उदाहरण दिया, राइट। व्हेन यू सी द कंक्रीट, कंक्रीट में क्या है, कंक्रीट में हार्ड वर्क नहीं है, कंक्रीट में एक्सप्लोरेशन नहीं है, कंक्रीट में फॉलोइंग है, कंक्रीट में डिस्कवरी नहीं है। हाँ, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रायशः all the great teachers, even if they are practicing devotion, this innocent devotion, but their intellectual mind also looks for something very abstract। थोड़ा सा अगर हम उपनिषद को पढ़ेंगे, समझ में आता है कि कितना फैसिनेटिंग है। विद द राइट टीचर, अगर वो सही प्रकार से आपको समझाएंगे, देन यू वांट टू, इसीलिए अगर आप किसी भी संस्कृत स्कॉलर से पूछो, वो तात्पर्य नहीं देते, वो संस्कृत सिखाते हैं, वो आपके साथ संवाद करते हैं, ताकि जब आप पढ़ोगे उसको, व्हेन यू रीड, you will reach out the conclusion which was originally intended by the rishis। हाँ, राइट। अब जैसे भगवत गीता में, भगवत गीता का एसेंस क्या है, हम बोलेंगे भगवत गीता का एसेंस है कृष्ण भक्ति, राइट, सरेंडर टू कृष्णा, दैट इज द एसेंस। दैट कुड बी द एसेंस ऑफ वैष्णव फिलोसफी, वैष्णव सिद्धांत का वो सार हो सकता है, लेकिन गीता का नहीं है। यू नो, गीता का सार क्या है, गीता का सार, गीता का एसेंस है, लाइक इन योर रियल लाइफ, आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन आएगी जहां आपको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा,
जो आप नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि जिनके साथ आपको निर्णय लेना है वो आपके बहुत निकट के हैं, आप उनका गौरव करते हैं, मोर देन लव यू रिस्पेक्ट देम, राइट। भीष्म देव को बाण चलाना कितना कठिन है। नाम जप करना कृष्ण को, बिना आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट चैंट हरे कृष्ण, बहुत इजी है। चार माला भी करो, आठ माला भी करो, एटलीस्ट यू कैन, यू कांट, यू डोंट टेक दैट, you don't take the burden of taking certain strong decision, you just chant which everybody likes। कलयुग में हरि नाम स्प्रेड हो रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हरि नाम आपसे आगे जाकर सवाल उठाएगा, यू नो, बाबा इधर आप मुझे देख रहे हो क्या? इट्स इजियर टू चैंट हरे कृष्ण or any अधिकृत बनता and say that this is none of my business, I don't want to take part, मुझे इसमें भाग नहीं लेना, ये बहुत हेडेक वाला काम। तो वहां आपका पुरुष प्रयत्न दिखाई नहीं देता, और इसलिए रेतस में पुरुष का जन्म होता है, whether it is feminine or masculine, मतलब कितना profound है। एंड वंस देर इज अ पुरुष, पुरुष का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज एंटरप्रेन्योरशिप, साहस, राइट। वो साहस करना चाहता है, और जो साहस करना चाहता है उसके लिए शरणागति सुपरफिशियल नहीं हो सकती है, और गहराई में जाना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद बाय वेरी नेचर दे आर एब्स्ट्रैक्ट सो दैट यू कैन एक्सप्लोर, एंड पुराणास बाय वेरी नेचर जूसी, मोर देन ब्लैक एंड व्हाइट ना, दे आर वेरी जूसी, टू relish in your heart without actually exploring। इसलिए जब उपनिषद और पुराण का समन्वय हो जाता है, जब भी आपको स्वाद करना है तो पुराण सुनो, जब आपको एक्सप्लोर करना है तो उपनिषद सुनो। ये डॉक्टर नारायणाचार्य राइट्स इन हिज वेद संस्कृति परिचय, if you study carefully, there was no such distinction or separatism in regards to the scripture। Upanishad doesn't have a different goal than the Puranas। Vedas do not have a different goal from महाकाव्य रामायण। गंतव्य वही है, लेकिन द मार्ग जो अपनाते हैं, और गंतव्य वही होने पर मार्ग दूसरा अपनाने पर भी दे आर नॉट आइसोलेटेड विद अदर स्क्रिप्चर्स। उपनिषद पढ़ने से ऐसा नहीं कि भागवत को भूल जाओगे, नो, रादर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द भागवत become much more relishable, much more profound, no, इसलिए भाषा ही फर्स्ट इज भाषा। इफ नॉट संस्कृत, अपने भाषा को, अपने मातृभाषा को, सब्जी वाले के पास जाने वाली भाषा नहीं, थोड़ा सा इवॉल्व अपनी भाषा को समझोगे, अपनी मातृभाषा को, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शास्त्र, द वर्ड इतना आसान बनने लगता है, इतना मजा आता है उसमें। जैसे मैंने बताया क्रिएशन और सृष्टि का, it's marvelous, it's fabulous। Therefore Upanishad has to be like that, because they force you to explore। Purana has to be like this because they, they drag you to relish। Thank you। Any other question? So we'll stop here। Hare Krishna।